स्वागत है आपका न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं JKLH लाइव। आर्टिकल 370 मामले पर सुनवाई जारी है। सुप्रीम कोर्ट में आज 13वें रोज की समाअत शुरू हो चुकी है। अटॉर्नी जनरल अदालत में पेश कर रहे हैं अपना मौकफ। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि मरकज किसी भी वक्त इंतखाबात के लिए तैयार है। रियासती मरकजी इलेक्शन कमीशन करेंगे फैसला। रियासती व मरकजी इलेक्शन कमीशन करेंगे फैसला। सरकार किसी भी वक्त, यानी कि उनका कहना यह था कि मरकजी हुकूमत जो है, सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि मरकज यानी मरकजी हुकूमत किसी भी वक्त इंतखाबात के लिए तैयार है और रियासती और मरकजी इलेक्शन कमीशन करेंगे फैसला। वोटर लिस्ट भी तकरीबन तैयार है। पहली बार जम्मू कश्मीर में 3 सतही पंचायती राज निजाम नाफिज किया गया। पहला इंतखाब पंचायत के लिए होगा और साथ ही बताया गया कि पथराव के वाकयात में 97% की कमी आई है। Televised, all this is being televised and all of this being recorded. So these facts come on the record. They are part of the public space and people feel what a great thing has been done by the government. This creates a problem. That's why progress never creates problem. I'm sorry. Allow me. We got your point. I think we have clarified it. Yes. That the constitutional challenge will be dealt with by the Supreme Court on constitutional grounds. That's right. None of this should enter into the... And they have not argued equity in defense to your constitutional challenge. That's all. That's all. Yes. I suppose these statements are otherwise in the public domain. In elections are not in the public domain. Therefore, Attorney General, you are meeting the constitutional challenge on constitutional argument. Which I You must address this matter like any other constitutional matter as a constitutional issue which we have to confront. There's a lot of facts. But when I answer the question of election and the statehood, these figures will go into our decision. So that you made, that's not part of the public space. And that Mr. Sibal has also clarified, they can't be in that. We needn't labor this issue, we're all now clear on, Yes. on conceptual grounds. Mr. Attorney now will hear you. Please, Your Lordship. I don't... तो ये हियरिंग की लाइव तस्वीरें हैं जो सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग चल रही है, उसकी सीधी तस्वीर। Corruption were on the lighter side. My learned friend said that there are some people who are under house arrest and therefore there is no gun. But that means the right people are in the house arrest. 5,000 people. Let's not make a mockery of democracy. 5,000 people were under house arrest at that time. 144 was throughout the state. This court, Manadina judgment has recognized that. But the internet was shut down and then they are saying there were no buns. Why? How can there be buns when people can't even go to hospital? People could not go to hospital because of the buns. They died. I wish a single... Let's not go into all this. I wish we don't have dialogue. Mr. Attorney, Mr. Sibal, we have, right from the inception of the hearing, we have heard this matter in a sense of dispassionateness. Absolutely. The sense of objectivity which must govern an answer to a constitutional challenge. We request both sides. Let's maintain it at that level. Absolutely. Because, yes. Yes, I don't think neither the solicitor nor me has entered into the domain to try to color the mind of the judges. We have not done that. I don't know about that. All right. Yes, Mr. Attorney. Sides say that the famous principle versus rules and the hard cases thesis to Dworkin. One wonders we are not in a situation like this. We are taking off from where I left day before yesterday. There's a couple of digressions I would like to probably play before a lot before I. Could we talk about the intent of a law? Wittgenstein, who co-authored with Bertrand Russell, and his famous philosophical investigation. He talks about a signpost. How do we know what a signpost means? There must be a practice of using the signpost. And an understanding we develop over the using of the signpost. Without that practice and understanding, the signpost means nothing. So this principle has been used in various circumstances to bring closer. If there is an understanding about a law on the basis of a practice, then interpretation follows one course, one trajectory. But if there is a lack of understanding or conflicts of understanding, interpretation heads in another trajectory.
Therefore, when you are trying to understand the intent and connect with the content of Article 370, you have to keep in mind what went into the original author's making of 370 and what has happened over a period of time by the practice of using Article 370. So, a text sometimes, by reason of its aging and the use of the text, may demonstrate a certain practice which may show in a slightly different direction. That's why in the context of desuetude, two important principles come. Disuse plus a contrary practice. I won't get into the desuetude doctrine, it's not necessary for our purposes. I don't want to flag that. We are trying to understand 370 in a perspective. We have all these complexities. It's not really a case of reading the text, looking at the text and the context and arriving at a meaning. We are confounded by the practice of Article 370, whether in conformity with the original intent or in deviation from it. So the court is now called upon to look at the age of the text and the use of the text and how in current times the President understands both the original text and the use of the text, and the President now understands is what I would like to do with the text. I left therefore yesterday on this proposition when the President is not precluded for what he called the taking stock of what Article 370 has done over a period of time. This taking stock is written into Article 370. So while we do that, how the President may take stock and how the court will be called upon to have a glimpse of understanding of what the President intended to do by taking stock, I just want to place 5-6 propositions in the context of construction against absurdity. These are all gathered from books on interpretation of statutes. Because the presumption against absurdity will, number one, avoid an impossible result. Presumption. It will also avoid an unworkable or impracticable result. I'll put them all together and hand it to your lordships now. It will also avoid an anomalous or illogical result. And connected to that is to avoid a futile or a pointless result. The third one you said, Mr. Attorney? First one is an impossible result. Third one. Third one, an inconvenient result. An anomalous or illogical result. An anomalous or illogical result. The final one, I said a futile or a pointless result. All these will go into courts looking again the presumption against absurdity. So court will avoid a construction. It requires a person who that which is impossible. The doctrine of impossible is contradicted to different, but when it comes to textual impossibility or constitutional text, it may stand on a different footing. That's why all these principles have a certain importance in construing Article 370. So I referred briefly the other day about this presidential poll judgment of your lordships. That is 1974 to SCC 33. Before I take a lordship of the 1974, it is a 143 reference in the context of holding election. Before I take a lordship of that, let me make a few observations. No, that's good. It's not part of the PDF because
It's not part of the compilation. Sir. Yes. So we're trying to look at the proviso to clause 3 of Article 370. So which is the part of this judgment you want us to see? Para? I'll give the paragraph, Your Lordship. We have it opened up and you have it on the screen as well, sir. We have paragraph. I'll just summarize the proposition was the presidential election had to be held. Gujarat Assembly was dissolved. Therefore, the electoral college was incomplete. But the argument was, before the electoral college become incomplete, you can't hold a presidential election. Court said, I read Articles 55, 54, etc., and come to a conclusion. It's a mandate that you must hold the election before the president term expires. Right. Therefore, the lack of the electoral college being not being complete will not come in the way. So that unless you fulfill that impossible, that the court says you must, the argument was, you must have the electoral college completed before you hold the elections. For the mandate of holding the election. You're stretching that to our case because according to the conditions for the application of the proviso to Article 373 are absent, and therefore the substantive part cannot be rendered into disuse merely because of the absence of the Constituent Assembly. Therefore, I come to the arguments on the other side currently. Now, there is no principle in jurisprudence. Give us a small para so we are then done with this judgment. These paragraphs 5, 4, 5, 12, 13, 15, 20, 21, 29 and 47. There they look at the impossibility of performance. How do they formulate it? Just let's see it in a moment. I'll presently complete. It's 7 judges, so we can just look at maybe that one or two sentences and how they formulate it. Give me paragraph. Also, just see paragraph 4 and 5. जिस तरह से जो उम्मीद की जा रही थी कि जवाब आएगा केंद्र सरकार का जो पक्ष रखेंगे एसजी, तो क्या लग रहा है कि ये जवाब उसी दिशा में है जैसा जिस तरह की चर्चा की जा रही थी? और आपके साथ कुछ लोग भी हैं शायद या कुछ मेहमान हैं, मनोज जी। हाँ, देखिए विशाल, ये आज काफी इंतजार था क्योंकि 2 दिन पहले ही तुषार मेहता ने ये कहा था कि वो एक पॉजिटिव स्टेटमेंट लेके आएंगे सुप्रीम कोर्ट में, और आज उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है उस पर किस तरह की प्रक्रिया होगी वो हम जानने की कोशिश करेंगे। हम अभी इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस के हमारे यहाँ जो जम्मू प्रोविंस के जो प्रोविंशियल सेक्रेटरी हैं शेख बशीर अहमद, उनसे बात करेंगे, उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर नेशनल कॉन्फ्रेंस का इस पर क्या कहना है। सर, जो तुषार मेहता ने ये कहा है कि इलेक्टोरल रोल्स जो हैं, इलेक्टोरल रोल्स अपडेट हो रहे हैं और काफी हद तक अपडेट हो चुके हैं, काम पूरा हो चुका है, सरकार तैयार है इलेक्शन करवाने के लिए, लेकिन अंतिम फैसला जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लेना है। आप किस तरह से ये जो फैसला है, लोग इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि चुनाव कब अनाउंस होंगे। अब सुप्रीम कोर्ट में तुषार मेहता जी ने जो ये कहा है कि हम तैयार हैं, वो पहले भी कहते आए हैं कि इलेक्शन तैयार हैं, और जो इलेक्टोरल रोल्स का बहाना ये कर रहे हैं वो ऐसा नहीं है। वो बहुत अरसा पहले उसकी रिवीजन हो चुकी है, उसके रोल्स भी सामने आए हैं, लेकिन सवाल यह है कि वो अभी ये इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर डाल रहे हैं कि उनको फैसला करना है, वो करेंगे तो फिर हम करेंगे। तो जब इलेक्शन कमिश्नर को पूछते हैं तो वो कहते हैं जब गवर्नमेंट कहेगी कि हालात ठीक हैं तो फिर करेंगे। तो इसलिए ये वेलकम स्टेप है कि अगर वो चुनाव अनाउंस करते हैं, जब तक चुनाव अनाउंस नहीं हो तब तक गैसिंग होगी। अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये चीज चल रही है, उसके ऊपर तो हम ज्यादा बहस नहीं करेंगे, वो कल वहां से क्या फैसला आता है वो तो उनके ऊपर हम नहीं छोड़ेंगे। लेकिन हम अभी जो तुषार मेहता साहब कह रहे हैं इस पर कितना भरोसा किया जाए, कितना ना किया जाए, जब तक इलेक्शन अनाउंस नहीं होंगे जम्मू कश्मीर में, और कभी एक बहाना होता है, कभी दूसरा बहाना होता है। गवर्नमेंट कहती है हालात ठीक हैं, सब कुछ ठीक है, तो हम 3 साल से कह रहे हैं कि जब हालात ठीक है तो चुनाव कराओ। और चुनाव के साथ जो दूसरी चीज है कि स्टेट का दर्जा भी बहाल करो। सुप्रीम कोर्ट में तो ये भी बहस चल रही है कि स्टेट को दर्जा जो है, यूनियन टेरिटरी में चुनाव कराना ऐसे ही है जैसे म्युनिसिपैलिटी है, तो स्टेट का दर्जा बहाल हो ताकि यहाँ के लोग नुमाइंदे बने, जो बड़े बड़े फैसले होते हैं वो फैसले लोगों के नुमाइंदे करें।
स्टेट का दर्जा बढ़ाने की जहां तक बात है, तुषार मेहता का ये कहना है कि यहाँ जम्मू कश्मीर में जो एलजी का प्रशासन है, काफी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, डेवलपमेंट का काम। मैं मनोज जी थोड़ा आपको रोकना चाहूंगा। इस वक्त कविंदर गुप्ता हमारे साथ मौजूद है राजन के साथ। राजन, कविंदर गुप्ता क्या कहना चाहते हैं इस विषय पर? कुछ समय का वैसे रिएक्शन लेना जरूरी है। राजन जी। जी कविंदर जी, जिस तरह से ये सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने ये कहा है कि केंद्र सरकार किसी भी वक्त इलेक्शन करवा सकती है जम्मू कश्मीर में, आपका क्या रिएक्शन? देखिए, भारतीय जनता पार्टी इसके लिए तैयार है और आज सॉलिसिटर जनरल श्रीमान तुषार मेहता जी के माध्यम से सरकार का जो रुख है वो सुप्रीम कोर्ट में रखा गया है। डिलिमिटेशन प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। जब भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कोई नोटिफिकेशन जारी करता है, प्रेरोगेटिव उनका है, तो भारतीय जनता पार्टी उसके लिए तैयार है। लोकतांत्रिक व्यवस्था बननी चाहिए, ऐसा मेरा मानना। आपको क्या लगता है कब तक इलेक्शन होने चाहिए, कब तक माहौल और स्थिति ऐसी हो सकती है? देखिए, जो एक पीरियड चाहिए होता है, 1.5-2 महीने का जो समय रहता है, जब भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहता है, तो मुझे लगता है उसके लिए पहले भी तो दिसंबर में इलेक्शन हुए थे। अब तो अमरनाथ यात्रा भी समाप्त हो चुकी है। सिक्योरिटी फोर्सेस जो उसके लिए लगाई होती हैं वो भी अब फ्री होंगी। तो जब भी सरकार इसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के माध्यम से डिक्लेयर करती है तो एक साजगार माहौल है। पहले से मिलिटेंसी समाप्त हो चुकी है। इससे पहले लोकल बॉडीज और दूसरे इलेक्शन भी हो चुके हैं। 2014 में भी इलेक्शन जो हुए थे दिसंबर के महीने में हुए थे, अक्टूबर-नवंबर में नोटिफिकेशन जारी हुई थी। यानी आपका कहना है कि दिसंबर का महीना ठीक रहेगा इलेक्शन करवाने के लिए। और जो राज्य का दर्जा है उस पे आपका क्या कहना है? क्योंकि ये कहा गया है कि अभी जो विकास के काम है एलजी प्रशासन की तरफ से वो किए जा रहे हैं जम्मू कश्मीर में, उसको लेकर क्या बीजेपी कहती है? देखिए, धारा 370 को हटाने के बाद जिस प्रकार का माहौल था, जरूरी था कि लॉ एंड ऑर्डर भारत सरकार अपने हाथ में लेती, तभी यूटी का दर्जा दिया गया था। तुषार मेहता जी के माध्यम से पहले भी ये कहा गया है कि यूटी जो है वो दोबारा से बनाई जाएगी, स्टेट द्वारा बनाई जाएगी। यूटी का जो दर्जा जो मिला है, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर केंद्र अगर अपने पास रखता है, ये परिस्थितियों की मांग है। तो मुझे लगता है कि जिस तरह का भी डिक्लेरेशन होती है उसी हिसाब से काम किया जाएगा। लेकिन जो सियासी पार्टियां इस बात की मांग पे अड़ी हुई हैं कि पहले राज्य का दर्जा बहाल हो, उसके बाद इलेक्शन करवाया जाए, अब बीजेपी का क्या स्टैंड है? देखिए, हम भी यही चाहते हैं कि दोबारा सरकार बने और माननीय गृह मंत्री जी ने कहा भी था कि जब भी हालात साजगार होते हैं तो मुझे लगता है कि समय आ गया है। जब भी वो इस चीज को डिक्लेयर करते हैं तो ये जो विपक्ष कह रहा है उससे पहले भारतीय जनता पार्टी कह चुकी है। हमने पिछले दिनों में देखा बीजेपी की कई समीक्षा बैठक हुई है और कई क्लोज डोर मीटिंग्स भी हुई है। हालांकि ये बीजेपी ने साफ पहले भी किया है कि लोकसभा की तैयारी उनकी चल रही है। आपको लगता है कि लोकसभा के साथ साथ असेंबली चुनाव होने चाहिए बीजेपी की तरफ से? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी पहले ही लोकतांत्रिक व्यवस्था की मांग कर रही है। तो हमने कहा है कि लेकिन ये प्रेरोगेटिव, मैंने पहले कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी के संगठन का सवाल है, हम लगातार तत्पर हैं और इस लोकसभा इलेक्शन में भी पहले से बेहतर स्थिति में पूरे भारत में। चलिए, शुक्रिया आप कविंदर गुप्ता जी का। शुक्रिया राजन। और मैं मनोज जी आपके पास वापस आना चाहता हूं। कविंदर गुप्ता जी को जो कह रहा था उन्होंने अपनी बात कहती है। एक बात यहां पर साफ ये थोड़ा सा करना चाहूंगा कि सुनवाई के दौरान जो कुछ भी आंकड़े दिए जा रहे हैं एसजी या एसजी की जानिब से, उस पर कपिल सिब्बल ने जो ऑब्जेक्ट किया था कि ये मामला दरअसल अलग है और कोर्ट को इस क्षेत्र में नहीं जाना चाहिए। यहां पर मामला जो जेर बहस है वो है संवैधानिकता का, कि संवैधानिकता का पालन किया गया या उसका उल्लंघन करते हुए जो है वहां पर 370 को निरस्त किया गया। बहरहाल मनोज, मैं फिर आपके पास आना चाहता हूं। जी जी मनोज, आपको मेरी आवाज आ रही है? वो आपके साथ जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर हैं उससे आप मजीद ये प्रतिक्रिया लीजिएगा कि आप, एक तो उन्होंने पहले ये कह दिया कि ये बातें तो पहले से ही कही जाती रही है कि हम तैयार हैं, इलेक्शन कमीशन के ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है, लेकिन फिर ये जवाब भी आता है कि केंद्र सरकार जब कहेगी कि वहां पर हालात ठीक है तभी इलेक्शन कमीशन जो इस बारे में आगे बढ़ेगा।
इससे आगे थोड़ा अगर देखें तो जो एनसी के प्रवक्ता हैं वो क्या कहना चाहते हैं कि ये जो हियरिंग चल रही है इससे उन्हें किस तरह की उम्मीद जग रही है या नहीं जग रही है, जो मेन कॉज जो है 370 रसीकरण का जिसको लेकर अर्जी दी गई है। जी जी बिल्कुल, मैं उनसे ये पूछूंगा शेख बशीर साहब, ये जो जिस तरह की अपनी प्रक्रिया चल रही है, जो कोर्ट में 370 का मामला जो है अभी जेर बहस है, उस पर दोनों तरफ से अपने अपने पक्ष रखे जा रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस को किस तरह की उम्मीद है? जिस तरह से अभी सुनवाई चल रही है, आपने देखा कि पूरा आप उसको देख रहे हैं, आपको क्या लगता है किस तरह की उम्मीद है आने वाले दिनों में? क्या कुछ हो सकता है कोर्ट के अंदर? क्या आप चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर को जो बहस वहां सुप्रीम कोर्ट में हो रही है, जम्मू कश्मीर के लोगों को उम्मीद है कि इस पर इंसाफ मिलेगा। जम्मू कश्मीर के लोगों को 370-35A और रियासत जो है उस फॉरम में मिलेगी जिस फॉरम में ये 5 अगस्त 2019 में थी। अब चूंकि बहस हो रही है तो हम इस उम्मीद में बैठे हैं कि लोगों को इंसाफ मिलेगा। तो देखिए विशाल, इनका ये कहना है कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है, उन्हें पूरी ये उम्मीद है कि जिस तरह से यहाँ उन्होंने, इनकी पार्टी ने भी जो एक रेट पिटीशन डाली थी जिसमें ये कहा गया था कि ये असंवैधानिक तौर पर 370 को हटाया गया है, जैसा कि शेख बशीर का कहना है, वो बार बार ये कह रहे हैं और उनकी पार्टी लगातार ये कह रही है, उनके पार्टी के बाकी लीडरान भी ये कहते आए हैं कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट से काफी उम्मीद है। हमने देखा कि उमर अब्दुल्ला ने कुछ दिन पहले ये कहा था कि उनका केस स्ट्रांग है, यानी उन्हें पूरी उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से। लगातार उन्हें लग रहा है कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हो रही है, जरूर उनका केस जो फैसला होगा वो उनके पक्ष में होगा। बहरहाल जिस तरह से अभी सुनवाई चल रही है कोर्ट में, किस तरह की आगे सुनवाई चलेगी और किस तरह से लोग इसमें पक्ष रखेंगे, जैसे आज सरकार पिछले 2 दिन से इसमें अपना पक्ष रख रही है, तमाम नजरें सुप्रीम कोर्ट पे हैं, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, या चाहे आम लोग जो जम्मू कश्मीर के हैं विशाल, वो भी लगातार सुप्रीम कोर्ट पर नजर गड़ाए हुए हैं और उन्हें इसी बात का इंतजार है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में क्या फैसला देता है। बिल्कुल, ये काफी अहम होगा यहाँ पर। तो आपने सुना कि शेख बशीर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर है वो क्या कह रहे हैं। कविंदर गुप्ता हमारे साथ मौजूद है, राजन हमारे रिपोर्टर वो उनके पास गए हुए हैं। राजन, मैं एक सवाल उनसे लीजिएगा कविंदर जी से। मनोज जी, आपका शुक्रिया। राजन, आपसे मेरा सवाल यह है कि आप उनसे ये सवाल पूछिए कि ये एक तरफ कि इलेक्शन कब कराए जाएंगे और यूटी से राज्य की तरफ कब ये फिर से कदम बढ़ेगा। तो उस पर साफ कहना था कि ये यूटी जो है वो अस्थायी व्यवस्था है, लेकिन मैं निश्चित समय सीमा अभी नहीं दे सकता, एसडी ने कहा कि यूटी से राज्य की तरफ जाने वाला। दूसरी बात उन्होंने ये कही है कि इलेक्शन के लिए तैयारियां लगभग मुकम्मल है, लेकिन वहीं पर जब वो डेटा बताने लगते हैं कि इस तरह की जो विकास के आंकड़े सामने आ रहे हैं, इससे लगता है कि तस्वीर जो है वो घाटी में बदल रही है, विकास हो रहा है और रोजगार के मौके खुल रहे हैं, तब उस पर कपिल सिब्बल जब ऑब्जेक्ट करते हैं कि ये दूसरा लाइन है, ये दूसरी लाइन है, इस तरफ हमें नहीं जाना। जो अर्जियां हैं वो दरअसल संवैधानिकता को तय करने के लिए है कि संवैधानिक अमल से ये 370 को रेस्ट किया गया या नहीं। तो इस पर सीजीआई ने कहा कि हम उससे अलग नहीं हटेंगे, ये मामला संवैधानिकता को तय करने वाला ही रहेगा। इस पर रिएक्शन ले लीजिए आप। जी बिल्कुल कविंदर जी, जिस तरह से जो इसकी संवैधानिकता है, जो इसका तो उस पर भी ये कहा गया है, हालांकि कोई समय सीमा नहीं दी गई है कि राज्य का दर्जा कब तक बहाल किया जाएगा। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, इस पर शायद मेरा बोलना ठीक नहीं है। केंद्र में जो सरकार बैठी है, उन्होंने जब ये कहा है सुप्रीम कोर्ट, तो स्वाभाविक बात है कि कोई टाइम बाउंड सिस्टम तो होगा ही। तो मुझे लगता है जल्द, जब हालात ठीक हैं, तो जल्द ही इसको विचार किया जाएगा और दर्जा दिया जाएगा। जो इसकी अहम बात आ रही है कि जो संवैधानिक जो इसका एक प्रोसेस होता है, उस पे सीजीआई ने कहा है कि उस पे उसको उससे अलग नहीं किया जाएगा इसको, तो उस पे क्या कहेंगे? बिल्कुल ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है उसी के अनुसार सब बातें चलेंगी। तो सरकार ने ये कह दिया है कि जल्द ही ये जो राज्य का दर्जा है द्वारा बहाल किया जाएगा, लेकिन हालात को देखते हुए मुझे लगता है कि जो लॉ एंड ऑर्डर है केंद्र अपने पास रखेगा। बिल्कुल, जैसे कि विशाल इनका कहना है कि जो केंद्र ने अपना जो जवाब है वो दे दिया है और उस पर जो भी टिप्पणी करनी होगी वो सॉलिसिटर जनरल की तरफ से की जाएगी। राजन, एक सवाल और कीजिएगा उनसे। बीते 5 सालों में कविंदर जी क्या बताते हैं कि हालात बेहतर हुए या नहीं? अगर बेहतर हुए तो चुनाव में देरी क्यों? अगर चुनाव में देरी हुई तो क्या समझा जाएगा कि हालात बेहतर नहीं हुए?
सीधा सवाल। जी जी, सीधा सवाल आपसे ये है कि जब बीजेपी ये कहती है कि हालात अच्छे हुए हैं, विकास के काम हुए हैं, टूरिस्ट इनफ्लो बहुत ज्यादा हुआ है, तो आपको लगता है कि इस वक्त हालात अच्छे, इलेक्शन होने चाहिए, या बीजेपी मानती है कि हालात ठीक नहीं है? भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक व्यवस्था को दोबारा कायम करने की मांग करती है और ये भारतीय जनता पार्टी इस पर जल्द पहले विचार भी कर रही है और कहा भी है। तो मुझे लगता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का प्रेरोगेटिव है, जब भी वो डिक्लेयर करते हैं हम तो तैयार हैं, हम लगातार लोगों के बीच में हैं। जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट का एक नया दौर। तो क्या कविंदर जी को यह लगता है कि इलेक्शन कमीशन को केंद्र से किसी इशारे का इंतजार है यहाँ पर या केंद्र सरकार के कहने का इंतजार है? बढ़िया एक तो आपको लगता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी इसी इंतजार में है कि कोई उनको संकेत मिले? बिल्कुल, ये उनका काम है, जो इलेक्टोरल रिव्यू उन्होंने करना है उसको करें और हम तैयार हैं। तो विशाल, इनका कहना है कि हम तैयार हैं, हमें अगर संकेत अगर इलेक्शन कमीशन अगर जब भी अनाउंस करता है हम तैयार हैं, और वाकई इनका कहना है कि इलेक्शन कमीशन को भी एक संकेत का इंतजार है और बीजेपी जो है, जो संगठन है इसका, वो तैयार है इलेक्शन के लिए किसी भी वक्त जम्मू कश्मीर में। चलिए, बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक यहां पर लेंगे। बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर यह हियरिंग चल रही है और बहुत ही जबरदस्त तरीके से जो अटॉर्नी जनरल है या सॉलिसिटर जनरल है वो आंकड़े रख रहे हैं कोर्ट के सामने। वो ये बता रहे हैं कि किस तरह की स्थितियां बदली हैं, वो ये बता रहे हैं कि कैसे वहां पर हालात जो है सामान्य की तरफ होते चले जा रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि कैसे वहां पर जो पथराव की घटनाएं ज्यादा होती थी वो अब 90% से ज्यादा कम हो गई हैं, बल्कि उससे भी ज्यादा। वो ये बता रहे हैं कि किस तरह से वहां पर रोजगार के मौके खुल रहे हैं। लेकिन कपिल सिब्बल जो अर्जी गुजारों के वकील हैं वो इस पर ऑब्जेक्शन करते हुए कहते हैं कि यह मामला अलग है। बहस इस बात को लेकर चल रही है कि क्या 2019 में जो 370 का निरस्तीकरण किया गया, वो निरस्तीकरण का पूरा अमल क्या संवैधानिक था, आईनी था या गैर आईनी था। इस पर उन्होंने सीजीआई को कहा कि आप इस क्षेत्र में न जाए। तो सीजीआई का कहना था कि जो मामले की संवैधानिकता तय करने का जो मामला है उस पर इसका असर नहीं पड़ेगा। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे।